أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اپنے ادارے کے جملہ سٹاف اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، رمضان المبارک دورہ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم اس میں پڑھ رہے تھے کھلی تبلیغ کی صورت میں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کو جو تکلیفیں جو مصائب جو پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی، تو آج اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ دار ارقم یہ ایک کیسا گھر تھا اور اس میں کیا ہوتا تھا۔ ایمان والیوں، جیسے کہ آپ نے پچھلے سبق میں دیکھا کہ مشرکین کا جو ظلم و ستم تھا وہ روز بروز بڑھ رہا تھا۔ اب ان ستمگانیوں کے مقابل حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو قولاً اور عملاً دونوں طرح اسلام کے اظہار سے روک دے اور ان کے ساتھ خفیہ طریقے پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کھلم کھلا اکٹھا ہوتے تو مشرکین آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب و حکمت کے کام میں یقیناً رکاوٹ ڈالتے اور اس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم ہو سکتا تھا، بلکہ عملاً سن 4 نبوت میں ایسا ہو بھی چکا تھا، جس کی تفصیل میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ جب صحابہ کرام گھاٹیوں میں اکٹھے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے، ایک بار کفار قریش کے کچھ لوگوں نے دیکھ لیا تو گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے۔ جواباً حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک شخص کو ایسی ضرب لگائی کہ اس کا خون بہہ پڑا اور یہ پہلا خون تھا جو اسلام کے لیے بہایا گیا تھا۔ ایمان والیوں، یہ واضح ہی ہے کہ اگر اس طرح کا ٹکراؤ بار بار ہوتا اور طول پکڑ جاتا تو مسلمانوں کے خاتمے کی نوبت آ سکتی تھی، لہذا حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ پس پردہ کام کیا جائے۔ چنانچہ عام صحابہ کرام اپنا اسلام، اپنی عبادت، اپنی تبلیغ اور اپنے باہمی اجتماعات سب کچھ پس پردہ کرتے تھے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کا کام بھی مشرکین کے روبرو کھلم کھلا انجام دیتے تھے اور عبادت کا کام بھی۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس سے روک ہرگز نہیں سکتی تھی، تاہم آپ بھی مسلمانوں کے ساتھ خود ان کی مصلحت کے پیش نظر خفیہ طور پر جمع ہوتے تھے۔ ادھر ارقم بن ابی ارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلس سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 سن نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا تھا، کس کو؟ دار ارقم کو۔ اب چلتے ہیں پہلی ہجرت کا، دیکھتے ہیں کہ کیا نقشہ تھا، کیوں ہجرت کرنا پڑی۔ ایمان والیوں، جور و ستم کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں سلسلہ نبوت کے 4تھے سال کے درمیان یا آخر میں شروع ہوا اور ابتداً معمولی تھا، مگر دن بہ دن اور ماہ بہ ماہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ نبوت کے 5ویں سال کا وسط آتے آتے
अपने शबाब को पहुंच गया, हत्ता कि मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दोबर हो गया, मुश्किल तरीन हो गया, और उन्हें इन जुल्म सितम से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। इन्हीं संगीन और तारीक हालात में सूरह कहफ नाजिल हुई। ये असलन तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाबात में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाकयात बयान किए गए, इन वाकयात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदू के लिए मुस्तकबिल के बारे में नहायत बलीग इशारात थे। चुनाचे असहाबे कहफ ने के वाक़े में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन और ईमान खतरे में हो तो कुफ्र और जुल्म के मराकज से हिजरत करके तन बा तकदीर निकल पड़ना चाहिए। अब ये पहली हिजरत इसलिए फिर हो गई। अब दूसरी हिजरत हबशा की तरफ देखते हैं कि इसका क्या मामला था, और ये मुख्तसर मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसकी बहुत सी वजाहत पड़ी हुई है, लेकिन चूंकि हमारा मुख्तसर मामला है, मुख्तसर जायजा आपके सामने हमने रखना है। ईमान वाले इसके बाद उन मुहाजिरीन पर, खसूसन मुसलमानों पर अमूमन कुरैश का जो जुल्म तशद्दुद है, जो जोरो सितम है, और बढ़ गया, और उनके खानदान वालों ने उन्हें खूब सताया, क्योंकि कुरैश को उनके साथ नजाशी के हुस्न सलूक की जो खबर मिली थी वो उस पर वो नहायत हैरान थे, चाहे बाजबी थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा कराम को फिर हिजरत हबशा का मशवरा दिया, लेकिन ये दूसरी हिजरत पहली हिजरत के बिलमुकाबल अपने दामन में ज्यादा मुश्किलात समेटे हुए थी, क्योंकि अब की बार कुरैश ने पहले से ही खुद को चुकन्ना किया था और ऐसी किसी कोशिश को नाकाम बनाने का तहैया किए हुए थे। लेकिन मुसलमान इनसे कहीं ज्यादा मुस्तैद साबित हुए और अल्लाह ने उनके लिए सफर आसान बना दिया। चुनाचे वो कुरैश की गिरफ्त में आने से पहले ही शाह हब्श के पास हिफाजत के साथ पहुंच गए। इसमें ईमान वालियों कुल 82 या 83 मर्दों ने हिजरत की और 18 या 19 खवातीन दूसरी हिजरत हबशा में शामिल थे। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि कुरैश की जो साजिश थी उन महाजरीन हबशा के खिलाफ वो कैसी थी। ईमान वालियों मुशरिकीन को सख्त कलक था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पुरअमन जगह भाग कर गए हैं। लिहाजा उन्होंने उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया को, जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक अहम सफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और इन दोनों को नजाशी और बतरीकों की खिदमत में पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदिया देकर हबश रवाना किया। इन दोनों ने पहले हबश पहुंचकर बतरीकों को तहाइफ पेश किए, फिर उन्हें अपने दलाइल से आगाह किया जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को हब्श से निकलवाना चाहते थे। जब बितरीकों ने इस बात से इत्तफाक कर लिया कि वो नजाशी को मुसलमानों के निकाल देने का मशवरा देंगे, तो ये दोनों नजाशी के हुजूर हाजिर हुए और तोहफे तहाइफ पेश किए और अपना मुद्दा उसके सामने बयान किया। काफी मुद्दा सुनने के बाद में नजाशी ने उसके जवाब में क्या कहा। नजाशी ने कहा और सोचा कि इस कुजियों को गहराई से खंगालना और इसके तमाम पहलुओं को सुनना जरूरी है। चुनाचा उसने मुसलमानों को बुला भेजा। मुसलमान ये तहैया करके उसके दरबार में आए कि हम सच ही बोलेंगे, खा नतीजा कुछ भी हो। ईमान वालियों, मुसलमानों को सुनने के बाद नजाशी ने क्या कहा। नजाशी ने ये कहा कि तुम मेरे यहाँ पर मुकम्मल अमान से रह सकते हो और रहो, यानी कि नजाशी की हमायत भी मुसलमानों के हक में हो गई। अब देखते हैं कि उसके बाद कुरैश ने क्या अगला हरबा इस्तेमाल किया। पिछली धमकी के बावजूद जब उन्होंने देखा कि
कुरैश ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं, तो इनको समझ में आ गया कि अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनकी अदावत मोल लेने को तैयार हैं। चुनाचा वो लोग एक स्कीम के तहत वहां पर गए और अबू तालिब के सामने गए और वहां पर से भी मायूस होकर लौटे। ईमान वालियों, बिल आखिर इन्होंने अपने जुल्म व सितम को बढ़ाते हुए एक तजवीज रखी, और वह तजवीज ये थी कि अब हम माअज़ल्लाह नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देते हैं। इन दोनों गुफ्तगुओं की नाकामी के बाद कुरैश का जो जज्बा जुल्म सितम था और भी बढ़ गया, और इज़ार रसानी का जो सिलसिला था पहले से ज्यादा फजूतर और सख्त तर हो गया। इन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खात्मे की एक तजवीज उभरी, लेकिन ये तजवीज और यही सख्तियां मक्का के जांबाजों में से दो नादिरा रोजगार सरफरोशों यानी कि हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम लाने और इनके जरिए इस्लाम को तकवीयत का सबब बन गई। पहले ये बात कामयाबी होगी कि ये दोनों शख्स जो नबी सल्लम के लिए उन्होंने तजवीज किए, ये बामुशर्फ इस्लाम हो गए, उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब अगर हम जुल्म सितम जो हमारे तुम्हारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्होंने किया, तो उसकी लिस्ट बड़ी तवील है, बड़ा तवील मुतालिया मौजूद है, और मैं आप सबसे कहूंगी कि जाकर जरा थोड़ा सा जब सीरत नबी का मुतालिया करें तो देखिएगा कि हमारे और तुम्हारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त की इस्लाम की दावत और तबलीग के लिए। उसमें एक नमूना मैं आपके सामने रख देती हूँ। ईमान वालियों, एक रोज अबू लहब का बेटा उतीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं वन नज्म इज़ा हवा और सुम्मा दना फतदल्ला, यानी कि सूरह नज्म की आयतें हैं, मैं इनके साथ कुफ्र करता हूँ। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इज़ार सानी के साथ मुसल्लत हो गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कुर्ता फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर थूक दिया। लेकिन ये ज़हन में रहो बात कि अगर चाहे वो थूक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर ना गिरी थी। इसी मौके पर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। ईमान वालियों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल फरमा ली। ये सिर्फ एक चीज, एक ज्यादती मैंने आपको बताई है। आप कभी इस चैप्टर को पढ़ कर देखें, ऐसी ऐसी यकीन जाने ज्यादतियां हमारे प्यारे आका पर की गई कि जुबान बोलते हुए भी डरती है कि इतनी शान और अदब वाले आका की बारगाह में कोई बेअदबी का लफ्ज ना हो जाए। अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम पर खलूस के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए और इस अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये जो दीन हमने प्लेट में रखकर उसको बाज लोग उस पर अमल ना करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उससे इनहराफ कर रहे हैं, उससे मुंह मोड़ रहे हैं। ये दीन हमें कितनी मुश्किलात, कितनी जद्दोजहद से मिला था। अल्लाह ताला हमें अपनी जिंदगी में अमली सूरत में मुसलमान और मोमिन और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आशिक और उनका अमली सूरत में नौकर बनने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम फी अमानिल्लाह।